Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. The next sum and a most important thing that today is our last lecture depending on chapter number 8 binomial theorem. So our last lecture, let's start. First example 16. The sum of the coefficients of the first three terms in the expansion of x minus 3 upon x square whole raised to m, where x is not equal to 0, m being a natural number, is 559. Find the term of the expansion containing x cube and also find the value small m. Answer. Here x minus 3 upon x square whole raised to m is equals to x plus in a bracket minus 3 upon x square whole raised to m be given. So the value of small a is equals to small x. The value of small b is equals to minus 3 upon x square and n is equals to m. And of course we know that tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. Put a, b, and in this equation we get tr plus 1 is equals to mcr x raised to m minus r minus 3 upon x square whole raised to r. Simplify this term, we get mcr x raised to m minus r minus 1 raised to r 3 raised to r x raised to 2r. Okay, so that in a denominator the variable x, okay, taking in numerator, so the index is going to be negative. So that implies tr plus 1 is equals to mcr x raised to m minus r minus 1 raised to r 3 raised to r x raised to minus 2r. So that implies finally tr plus 1 is equals to mcr minus 1 raised to r 3 raised to r and x raised to m minus r minus 2r. So we get x minus 3r. Give it result number capital A. Now it is given that what we have given that the first three terms, the sum of the coefficient of the first three terms is equals to 559. So that implies, okay, in a first term that means t1 the value of r is equals to 0. So put r is equal to 0 here, here and here. We get these both are 1 and the combination must be mc0 because we know that we have to get the coefficient. Okay, इसका मतलब हमें सिर्फ कोएफिशिएंट ही चाहिए, नहीं कि पूरा टर्म. ओके, तो जो पहला टर्म होगा t1 उसमें r इज इक्वल टू 0 होगा. सो r इज इक्वल टू 0 हमें x के अलावा जो टर्म होगा x के मल्टीपल के साथ जो भी होगा वहां हमें r इज इक्वल टू पुट करना है. तो mc0 यहाँ आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये इसका आंसर 1 प्लस सिमिलरली इन अ सेकंड टर्म द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1. सो वी गेट mc1 minus 1 3 raised to 1, and in a third term the value of r is equal to 2. We get mc2 minus 1 raised to 2 3 raised to 2 is equals to 559. So mc0 we get 1 plus mc1 we get m, and here negative sign, so finally we get minus 3m plus here mc2 we get m factorial divided by 2 factorial m minus 2 factorial, and
-1 square, that means we get 1, and 3 square, that means 9. So is equal to 559. And we know that m factorial, that means 100, and m minus 2, that means 98. So 98 cancel on both the sides, so we get here m minus 1 and m, because आपको पता ही है कि 100 फैक्टोरियल को हमें 98 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 98 फैक्टोरियल into 99 into 100. So 98 factorial cancel on numerator and denominator. So that implies 1 minus 3m plus 9m square minus 9m divided by 2 is equals to 559, because we know that the value of 2 factorial is equals to 2. So taking an LCM and multiply 2 with 559, so cross multiply, so that implies we get 2 minus 6m plus 9m square minus 9m is equals to 1118. So that implies a final equation, we get 9m square minus 15m minus 116 is equals to 0. Taking 3 as a common, we get 3m square minus 5m minus 372 is equals to 0. Now solving this quadratic equation, we get the value of m, which is okay. अभी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो 372 इंटू 3 वी गेट 1116, और 1116 का ऐसे कोई दो नंबर्स है जिसका मल्टीप्लाई या करने से हमें आंसर मिल सके, और या उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने से हमें कितना, तो -5 मिल सके. यस, वी हैव दैट टू नंबर्स, दैट मीन्स 36 and 31. सो दैट इम्प्लाइज 3m square minus 36m plus 31m minus 372 is equals to 0. Taking 3m as a common, we get m minus 12 plus 31 as a common, we get m minus 12 is equals to 0. So that implies m minus 12 and m 3m plus 31 is equals to 0. So that implies m is equals to 12, or m is equals to minus 31 by 3, which is does not belongs to capital N. So which is not possible. So finally we get m is equal to 12. So m is equal to 12 put in result capital A. Therefore A implies we get TR plus 1 is equals to 12CR minus 1 raised to R, 3 raised to R, and x raised to 12 minus 3R. Give it result number capital B. Okay, so one answer will complete our value of finding m. Okay, now we have to find the term of expansion containing x cube. मतलब हमें x cube वाला term अभी हमें find out करना है. So now to find the term containing, now to find the term contain x cube, now to find the term containing x cube, take 12 minus 3R is equals to 3 in capital B, because we know that हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब वाला टर्म फाइंड आउट करना है. इसका मतलब हमारा जो जनरल फॉर्म हमें मिला रिजल्ट नंबर बी, उसमें जो एक्स वाला जो टर्म होगा, बराबर एक्स वाला वेरिएबल, तो एक्स रेस टू जो भी टर्म होगा उसके इक्वल हमें 3 लेना होगा. आगे के कई सम में हमने किया है. सो हियर वी गेट 3R is equals to 9, and finally we get R is equals to 3. Put R is equal to 3 in result number B. So B implies T3 plus 1 is equals to 12C3 minus 1 raised to 3, 3 raised to 3, and obviously x raised to 3. समझ में आ गया. इसके रिप्लेस में हमने 3 पुट कर दिया. ओके,
चलो, तो दैट इम्प्लाइज T4 इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल -1 क्यूब, એટલે वो माइनस आएगा आंसर, उसका आगे मैं शिफ्ट कर देता हूँ 3 3 3, दैट मीन्स वी गेट 27 इंटू एक्स क्यूब। चलो, अभी तो आपको पता ही होगा कि 9 फैक्टोरियल कैंसिल करना होगा तो 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल इंटू 10 11 एंड 12, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, उसका आंसर मैं बाद में लिखता हूँ, -10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 27 डिवाइड बाय 6 एंड एक्स क्यूब, सो 6 2 ज़ा 12 एंड फाइनल आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको T4 क्या मिलेगा, -5940 एक्स क्यूब। इसका मतलब जो एक्स क्यूब वाला टर्म होगा वो कौन सा होगा, -5940 एक्स क्यूब वाला आंसर होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लो। एग्जाम्पल नंबर 11, if the coefficients of a raised to r minus 1, a raised to r and a raised to r plus 1 in the expansion of 1 plus a raised to n are in arithmetic progression, prove that n square minus n into 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equals to 0। आंसर ओके, तो हमें एक एक्सपांसन 1 प्लस एक्स इज टू एन दिया है, ओके, उसमें किसके, तो के जो ए रेस्ट आर माइनस 1 है, ए रेस्ट आर और ए रेस्ट आर प्लस 1 के जो कोइफिशिएंट्स है उसको किसने कैसे फॉर्म में दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, ओके। तो लेट सी, सबसे पहले हियर 1 प्लस ए रेस्ट टू एन बी given, therefore the value of capital A is equals to 1. Why we use capital letter we know, okay, and n is equal to obviously n. We know that what we know that TR plus 1 taking as capital R is equals to NCR A raised to n minus R B raised to R. So that implies put this all value in this. So NCR, the value of A1 and value of B, that means A raised to R। चलो, अभी ये जो हमारा फॉर्म आया है उसको मैं कैपिटल ए देता हूँ, इसको हम ये इसके साथ कंपेयर करेंगे, ओके। यहाँ पे ए रेस टू कैपिटल आर और यहाँ पे ए रेस टू आर माइनस 1 है, ओके। सो सबसे पहले हम आर इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर माइनस 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन सी आर माइनस 1 मिलेगा, उसके बाद एन सी आर मिलेगा और उसके बाद एन सी आर प्लस 1 मिलेगा। सो इसके कोएफिशिएंट तो हमें मिल गया, बराबर ना। कोएफिशिएंट मतलब कि ए रेस टू आर माइनस 1, ए रेस टू आर एंड ए रेस टू आर प्लस 1 के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में होगा, बराबर, जो भी टर्म होगा या जो भी कांस्टेंट होगा वो हमारा कोएफिशिएंट होगा। सो आप देख सकते हैं हियर इन ए रेस टू आर माइनस 1 अवर कोएफिशिएंट इज एनसीआर माइनस 1, सिमिलरली ए रेस टू आर इन ए रेस टू आर एनसीआर एंड एनसीआर प्लस 1। सो ये तीन हमारे कोएफिशिएंट्स होंगे और वो क्या है, हमें एपी में दिया है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है। चलो, now it is given that a raised to r minus 1, a raised to r and a raised to r plus 1, okay, sorry, is given that the coefficients of a raised to r minus 1 are in AP, that means arithmetic progression. So that implies, चलो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, NCR minus 1, NCR and NCR plus 1 are in AP, ओके। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टर्म्स है, बराबर ना, ओके, हमारे एक्सपेंशन के जो ये ए रेस टू आर माइनस 1 है, ए रेस टू आर, ए रेस टू आर प्लस 1 है, उसके कोएफिशिएंट जो भी हो गए वो किस में है, तो के एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये हमारे तीनों के तीनों हमारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, बराबर ना। कॉम्बिनेशन मतलब हमारे कोएफिशिएंट्स, बराबर। हमारे जो कोएफिशिएंट्स है वो सिंपल कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में नहीं है। सो ये तीन हमारे कोएफिशिएंट्स होंगे किसके, ए रेस टू आर माइनस 1, ए रेस टू आर एंड ए रेस टू आर प्लस 1 रिस्पेक्टिवली। नाउ अभी मैं आपको एक रूल समझाने जा रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी सीखा ही है, बराबर। कौन सा, चलो, सपोज मेरे पास तीन टर्म्स है A1, A2 एंड A3 विच आर इन AP।
और एपी आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म्स एपी में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, देन डिफरेंस बिटवीन एनी टू numbers, okay, difference between any two numbers which are same, okay, so आप a2 माइनस a1 करेंगे या a3 माइनस a2 करेंगे, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 4 and 6, okay, these are in AP because 4 minus 2 we get 2 and obviously 6 minus 4 we get 2। समझ में आ रहा है? सो a2 माइनस a1 करेंगे या a3 माइनस a2 करेंगे, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अब ये माइनस a2 के इधर और माइनस a1 को उधर शिफ्ट करूंगा, सो वी गेट a2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3, सो दैट इम्प्लाइज 2 टाइम्स a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड टर्म होगा ना उसका 2 टाइम्स आप करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के एडिशन के इक्वल आपको मिलेगा। ओके, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मैं यहाँ पे अभी अप्लाई करने वाला हूँ इसलिए। ओके, सो दैट इम्प्लाइज वी मे राइट, so that implies 2 times NCR is equals to NCR minus 1 plus NCR plus 1। चलो समझ में आ गया। अभी इसका क्या करेंगे, हम एक कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम सॉल्व करेंगे। okay, that implies 2 times n factorial divided by r factorial n minus r factorial is equals to n factorial divided by r minus 1 factorial and n minus r plus 1 factorial plus n factorial divided by r plus 1 factorial n minus r minus 1 factorial। ओके, चलो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से पहले समझना। चलो ओके, अभी ये मेरे पास आर फैक्टोरियल, सबसे पहले एन फैक्टोरियल को मैं तीनों साइड से कैंसिल कर देता हूँ। ओके, आई यूज ब्लैक पेन। ओके, चलो अभी जो डिनोमीटर में आप दिख रहा है, ओके, यहाँ से तो कॉमन ही आपको निकलेगा। ये आर फैक्टोरियल मतलब आप इसको 100 समझिए, ये 100 है तो आर माइनस 1 मतलब ये 99 है, दैट इम्प्लाइज ये आपका 101 है। ओके, तो 100, 99 एंड 101, तो तीनों में से सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 99। तो 99 को हम कॉमन आउट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको 99 में कन्वर्ट करेंगे। वी में राइट, हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, और जो रिमेनिंग जो आर है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी इस यहाँ पे फोकस करना है स्टूडेंट्स, ये हमारा सपोज ये आपको 100 समझना, आर माइनस एन माइनस आर को आप सपोज 100 समझेंगे, तो यहाँ पे 100 है, इसका मतलब यहाँ पे 101 है, इसका मतलब यहाँ पे 99 है, क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 प्लस 1 101 एंड 100 माइनस 1 दैट मीन्स 99। तो तीनों में से छोटा वाला कौन सा है, ऑब्वियसली 99, मतलब एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, वो यहाँ से कॉमन आउट ले लेते हैं, तो एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस आर लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 है, 100 को 99 फैक्टोरियल में मुझे लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एन माइनस आर, वो तो 100 था, मतलब 100 माइनस 1 दैट मीन्स 99, मतलब ये माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 100। समझ में आ गया, दैट मीन्स एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा हो गया बराबर। अभी क्या करेंगे, ये दोनों में से कौन सा एन माइनस आर कॉमन आउट ले लेते हैं, सॉरी आर माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आउट, और दूसरा कौन सा, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आउट ले लेते हैं। चलो यहाँ पे कौन सा टर्म रिमेन होगा, तो आप देख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल तो बाहर निकल गया है। ओके, तो यहाँ पे तो ये डिनोमिनेटर में ये तो नहीं रहेगा, और यहाँ से हमने कितना बाहर निकाल लिया, तो 99 बाहर निकाला ना, तो हमारे पास कितना बचेगा, एक तो 100 बचेगा और 101 दैट मीन्स एन माइनस आर प्लस 1 एंड प्लस उसी तरह यहाँ पे कितना हमारे पास बचेगा, तो आर प्लस 1 है, हमने कितना 99 बाहर निकाला ना, और ये 101 है, मतलब ऑब्वियसली 100 एंड 101 रहेगा, तो उसको हम लिखना होगा, क्या लिखेंगे, तो 100 एंड 101, और यहाँ से तो ये तो पूरा टर्म ही बाहर निकल दिया बराबर ना, तो इतना टर्म यहाँ पे बचेगा। समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, फिर से मैं आपको अंडरलाइन कर ही देता हूँ, जैसा कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अभी समझ में आ गया।
ओके, ये दोनों ब्रैकेट में से मैंने क्या डिनोमीटर में r-1 फैक्टोरियल और r-1 n-r-1 फैक्टोरियल कॉमन आउट निकले, मतलब 99 दोनों में से 99 मैंने कॉमन आउट निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो 99 निकल गया और ये कितना था 101 था, जिसमें से 99 मैंने बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास कितना बचेगा 100 एंड 101। तो आप देख सकते हैं ये 100 है, ये 101 है। ओके, क्योंकि ये 100 + 1। सिमिलरली यहाँ पे ये 99 मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिमेनिंग टर्म नहीं रहेगा। पर यहाँ पे कितना है 101 है और हमने 99 बाहर निकाला, r-1 दैट मीन्स 99। तो कितना बचेगा 100 एंड 100 + 1 मतलब r + 1। चलो अभी कौन सा टर्म कैंसिल होगा, एक तो r-1 फैक्टोरियल कैंसिल एंड r-n-r वाला टर्म कैंसिल होगा। सो जो बचेगा टर्म वो कौन सा होगा, और यहाँ पे भी क्या लेते हैं एलसीएम ले ही लेते हैं। सो दैट इम्प्लाइज 2 / r इंटू ब्रैकेट n-r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो r इंटू ब्रैकेट r + 1 प्लस n-r प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय r + 1 n-r प्लस 1। चलो दोनों साइड से कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे, एक तो ये r कैंसिल होगा और n-r कैंसिल होगा, और जो रिमेनिंग टर्म है ओके ये डिनोमीटर को इधर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। सो वी गेट 2 × r + 1 n-r प्लस 1 इज इक्वल्स टू r इंटू ब्रैकेट r + 1 प्लस n-r प्लस 1। चलो सभी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। वी गेट 2rn प्लस माइनस 2r² and plus 2, similarly plus 2n minus 2r and plus यहाँ पे 2r आएगा और यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल्स टू r² प्लस r प्लस ये दो ब्रैकेट ओपन गया, n को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n² माइनस nr प्लस n माइनस nr माइनस माइनस प्लस r² एंड माइनस r। चलो कौन से टर्म कैंसिल होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस 2r माइनस 2r कैंसिल, और कोई कैंसिल होता है टर्म नहीं। ओके वेरी गुड। सो ये सभी टर्म को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ओके इधर इक्वल के इधर साइड। सो सबसे पहले हमारा जो प्रूफ करना था उसमें क्या था n² था, तो ये देखो n² आ गया हमारे पास। ओके उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे n, तो ये प्लस 2n है, प्लस 2n होगा और प्लस n दैट मीन्स वी गेट माइनस n और माइनस 2r² और इधर ऑलरेडी r² प्लस r² 2r² और माइनस उधर जाएगा तो वी गेट प्लस 4r² और 2rn, यहाँ पे rn माइनस rn। सो यहाँ पे एक काम करते हैं माइनस 4rn लिख देते हैं n प्लस 4r² और माइनस 2, क्योंकि ये प्लस 2 दे जाएगा तो माइनस 2। समझ में आ गया। यहाँ पे 2rn, यहाँ पे माइनस rn और यहाँ पे माइनस rn, मतलब यहाँ कितने हो गए माइनस 2rn और ये प्लस 2rn उधर जाएगा तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4rn। ओके सो यहाँ पे माइनस 4rn होगा और ये माइनस 2r² उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 2r² तो है ही, मतलब 4r² प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। तो फाइनली वी गेट n², यहाँ माइनस n कॉमन, सो वी गेट 4r प्लस 1 प्लस 4r² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या प्रूव करना था, समझ में आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा इजी है पर सम थोड़ा ऐसा है कि ओके एक बार शांति से देख लो। एग्जाम्पल नंबर 12, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म in the expansion of 1 plus x raised to 2n is equal to the sum of the coefficients of two middle terms in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1। चलो तो ये पहला एक्सपांसन रेज टू 2n है, मतलब विच इज अ इवन नंबर, दैट मीन्स वी गेट ओनली वन मिडल टर्म। ओके उसका जो भी आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा,
जो सेकंड हमारा एक्सपांसन है 1 प्लस एक्स रेज टू 2n-1, 2n-1 दैट मीन्स विच इज अ ऑड नंबर, सो वी गेट 2 मिडल टर्म्स। तो जो 2 मिडल टर्म्स मिलेंगे उसका दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, इसका, मतलब जो फर्स्ट एक्सपांसन का जो आंसर होगा ना कोएफिशिएंट का, उसके इक्वल हमें मिलेगा। सो लेट सी आंसर हियर। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू 2n be given in which we get the value of a is equal to 1, value of b is equal to x, and value of small n is equals to 2n, which is even. Therefore we have one middle term. So the one middle term finding, therefore middle term is equals to n by 2 plus 1th term. So put n is equal to 2n by 2 plus 1th term. So here we get 2 to cancel, so n plus 1th term. चलो, जो फर्स्ट एक्सपांसन था उसका जो मिडल टर्म था वो तो हमें मिल गया। कौन सा वाला, n प्लस 1 वाला जो टर्म है वो मिडल टर्म है, तो वो हम उसका हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वी नो दैट tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. So that implies t n plus 1 is equals to 2nc and the value of a which is 1 and value of b is equals to n. So therefore the coefficient of middle term is equals to 2nc n. इसको रिजल्ट नंबर कैपिटल ए दे देते हैं। चलो, एक कोएफिशिएंट का आंसर तो हमें मिल गया जो फर्स्ट एक्सपांसन दिया था उसका। अभी हम सेकंड एक्सपांसन दिया उसकी बात करते हैं। नाउ 1 plus x raised to 2n-1 b also given, and in which the value of a is equals to 1, the value of b is equals to x, and of course n is equals to 2n-1, which is odd. So we have, therefore we have two middle terms, in which the first middle term is equals to n plus 1 by 2th term, and second middle term is equals to n plus 1 by 2 plus 1th term. So we have, and the value of n 2n-1 plus 1 by 2th term, and is equals to 2n-1 plus 1 by 2 plus 1th term. So here minus 1 plus 1 cancel, so we get 2n by 2th term, and here we have minus 1 plus 1 both are cancelled, so we get 2n by 2 plus 1th term. So finally 2 to cancel, so first middle term we get nth term, and the second middle term we get n plus 1th term. That means we have given a second expansion. जो हमें second expansion दिया था उसके लिए जो दो middle terms है वो कौन से मिले, एक nth term मिला और n plus 1th term मिला। तो दोनों के जो जनरल फॉर्म क्या आएंगे वो देख लेते हैं। सो वी नो दैट tr plus 1 is equals to ncr a raised to n-r b raised to r. ओके, तो nth टर्म है उसको r plus 1 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। सो दैट इम्प्लाइज tn is equals to ncr tn is equal to t n-1 plus 1 is equals to 2n-1 cn-1 इंटू एक्स रेज टू n-1। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पास
तो आपको पता है कि यहाँ पे nth टर्म है ना, सिर्फ nth टर्म, तो उसको r+1 में कन्वर्ट करना है, मतलब +1 लाना है, तो उसको +1 में कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे, -1 +1 करेंगे। सो n-1 +1, अभी इसको इन दोनों के कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि r की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे n-1 मिलेगी, और ये +1 तो है ही, बराबर ना। तो NCR मतलब यहाँ पे r है, वहाँ पे भी n-r आएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2n-1, वो यहाँ पे पुट कर दी, a की वैल्यू तो 1 ही है, और b वैल्यू क्या है, तो x है, x⁻r की वैल्यू n-1। सो ये हमें एक्सपांसन मिल गया, और जो दूसरा मिला कौन सा, तो n+1 टर्म वाला, बराबर ना। तो एंड Tn+1 इज इक्वल्स टू 2n-1 Cn एंड x⁻n, इतना ही मिलेगा, क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी r+1 के फॉर्म में ही अवेलेबल है। चलो बोलो, मतलब जो फर्स्ट मिडिल टर्म मिला उसमें कौन सा हमारा कोएफिशिएंट 2n-1 Cn-1 है, और जो सेकंड मिडिल टर्म मिला उसका कोएफिशिएंट 2n-1 Cn है, बराबर। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 2n-1 Cn-1, and of course the coefficient of second middle term is equals to 2n-1 Cn। ओके, सो ये दोनों कोएफिशिएंट मिले, 1 + 2 करेंगे, क्योंकि इसका एडिशन करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ आवर फर्स्ट एक्सपांसन मिडिल टर्म। So 1 + 2 is equals to, therefore their sum 1 + 2 implies 2n-1 Cn-1 and 2n-1 Cn। सो इसको डायरेक्टली हम हमारा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का जो एक रूल है वो अप्लाई करेंगे। सो वी गेट फाइनली आंसर 2n-1 + 1 Cn हमें मिलेगा, बिकॉज हमारे पास रूल है कि NCR + NCR-1 होगा हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, n+1 CR लिख सकते हैं, बराबर ना। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का एक रूल है, -n + n कैंसल, सो दैट इक्वल्स टू 2nCn हमें मिलेगा, और ये हमारा क्या है, दैट इक्वल्स टू क्या है हमारा, द कोएफिशिएंट of middle term of 1 + x⁻²n। So hence finally 2n-1 Cn-1 plus 2n-1 Cn is equals to 2nCn हमें मिलेगा। क्या प्रूफ करना था, समझ में आ गया? ओके। Example number 14. Find the rth term from the end in the expansion of 1x + a⁻n। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, rth टर्म फाइंड आउट करना है, पर कहाँ से, बिगिनिंग से नहीं, पर एंड से फाइंड आउट करना है। सो लेट सी आंसर हियर, x + a⁻n बी गिवन। चलो, सो दैट इम्प्लाइज x + a⁻n को अगर मुझे लिखना होगा तो इसको मैं क्या कर दूंगा, हमारा बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो मुझे क्या मिलेगा, NC0 x⁻n + NC1 x⁻n - 1a + NC2 x⁻n - 2a² plus up to plus NCn a⁻n, result number 1. So in above expansion, therefore n+1 terms, therefore we have n+1 terms in above expansion. Okay,
सो अभी यहाँ पे जो मैं फर्स्ट लाइन जो लिख रहा हूँ ना उसको ध्यान से स्टूडेंट्स पहले देखना. ओके, देयरफॉर n+1, therefore n+1th term is first term from end. ऐसा मैं बोल सकता हूँ. जो n+1th टर्म है, बराबर, n+1 मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे करके ये जो लास्ट टर्म होगा ना वो, बराबर, और जो लास्ट टर्म है वो एंड से फर्स्ट टर्म होगा. टर्म इज अ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, बराबर ना. सो इसको मैं लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 माइनस इंटू ब्रैकेट 1 - 1 इज इक्वल टू n+1 लिख सकता हूँ. अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस है, दैट मीन्स -1 + 1 कैंसिल, तो फाइनली वी गेट n+1. तो ये जो फॉर्म है मैंने यहाँ पे सेटअप किया है. ओके, अभी आगे देखना. देयरफॉर nth टर्म इज अ सेकंड फ्रॉम द एंड, दैट मीन्स n+1 2 - 1 इज इक्वल्स टू n. -2 + 1 दैट मीन्स वी गेट -1. सो -1 + 1 कैंसिल, वी गेट n. समझ में आ रहा है? ओके. सिमिलरली अगर n-1th टर्म होगा मतलब लास्ट थर्ड टर्म, बराबर ना, तो वो क्या होगा, तो थर्ड टर्म होगा कहाँ से, तो क्या एंड से. सो n+1 माइनस 3 - 1 इज इक्वल्स टू n-1. एंड सिमिलरली n-2th टर्म वो क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा फ्रॉम द एंड, दैट मीन्स n+1 माइनस 4 - 1 इज इक्वल्स टू n-2. चलो अभी आप एक बात फोकस करना, जो टर्म मैंने यहाँ पे सेटअप किया, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है मतलब फर्स्ट टर्म है. कौन सा वाला, n+1 जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म है, बराबर, पर कहाँ से, एंड से. सिमिलरली यहाँ पे 2 है मतलब nth जो टर्म है वो सेकंड टर्म है, पर कहाँ से, एंड से. सिमिलरली यहाँ पे 3 है, थर्ड टर्म. कौन सा वाला, n-1 वाला जो टर्म है वो थर्ड टर्म है पर एंड से. सिमिलरली ये 4 है यहाँ पे, तो फोर्थ टर्म है. कौन सा वाला, तो n-2 एंड से. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे. तो देयरफॉर rth टर्म फ्रॉम एंड हमें क्या मिलेगा, n+1 माइनस r-1 मिलेगा. ओके, समझ में आ गया ना. सिर्फ यहाँ पे जो 1 2 3 4 हो रहा है ना, सो उसके रिप्लेस में सिर्फ हमें r यहाँ पे करना है. तो वही होगा, वो जो भी टर्म यहाँ पे मिलेगा हमें वो rth टर्म फ्रॉम द एंड मिलेगा, मतलब ये टर्म मिलेगा. सो n-r+2 यहाँ पे हमें मिलेगा. सो जो हमें फाइंड आउट करना था वो कौन सा वाला टर्म था, n-r+2th टर्म था. और इसमें अगर हम बात करेंगे r की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी, 1 लेस, मतलब n-r+1 मिलेगी. सो नाउ वी नो दैट t कैपिटल R+1 इज इक्वल्स टू NCR x⁻n-r a⁻r. Give it result number capital A. Now to find rth term from end, take capital R is equals to n-r+1 in capital A. So therefore capital A implies, because we know that अगर n-r+2th टर्म है तो उसमें हमारे कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली एक नंबर कम, मतलब n-r+1 होगी. सो वी गेट t(n-r+2) इज इक्वल्स टू NC(n-r+1) यहाँ पे मिलेगा, x⁻n-r+1 यहाँ पे मिलेगा, एंड इंटू a⁻n-r+1. सो फाइनली वी गेट t(n-r+2). दिख रहा है यहाँ पे r+1, कैपिटल आर की वैल्यू n-r+1 है और ऑब्वियसली +1 तो है ही, बराबर ना. समझ में आ गया. सो इज इक्वल्स टू NC(n-r+1) इज इक्वल्स टू x⁻r-1 इंटू a⁻n-r+1. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार सॉल्यूशन देख लो. ओके, सो फाइनली द टाइम्स कम्स द लास्ट सम
द लास्ट example of our chapter number 8 binomial theorem, which is example number 6. Prove that the middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n is 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1 divided by n factorial into x raised to n 2 raised to n, where n is a positive integer. Let's see. Answer here 1 plus x raised to 2n be given. The value of a is equals to 1, the value of b is equals to x, and the value of n is equals to 2n, which is even. So we have, therefore we have one middle term. Therefore middle term is equals to n by 2 plus 1th term, so that equals to 2n by 2 plus 1th term, so that equals to 2 to cancel, so we get n plus 1th term. मतलब जो मिडल टर्म है वो कौन सा टर्म है, n प्लस 1th टर्म है. सो वी नो दैट tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. Put all these three values in. So t n plus 1 is equals to, because we have n plus 1th term is a middle term of 1 plus x raised to 2n. So 2n c n x raised x, the value of x1 and x raised to n. तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रूफ है उसमें x raised to n तो एक आ गया, अभी इसका हमें करना है. सो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 2n माइनस n factorial into x raised to n. So that implies 2n factorial को मैं ओपन कर देता हूँ. 1 into 2 into 3 into up to dot 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 2n minus 1 into 2n divided by n factorial into n factorial, because 2n minus n that means n factorial, and into x raised to n तो है ही. ओके चलो अभी मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n है. ओके चलो फर्स्ट हमारा ऑड नंबर है, सेकंड इवन है, थर्ड ऑड है, फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन. दैट मीन्स ये 2n माइनस 1 हमारा ऑड नंबर होगा एंड ऑब्वियसली 2n विच इज इवन नंबर. तो दोनों को स्प्लिट कर देते हैं. ओके अलग अलग कर देते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू डॉट 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 2n माइनस 1, ये हमारा हो गया ऑड नंबर. अभी इवन नंबर लिख देते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू 2n एंड x रेज टू n तो है ही हमारे पास, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. चलो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू डॉट 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 2n माइनस 1. अभी यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 6 है. ओके तो उसको मैं लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताता हूँ मैं आपको. 2 है तो उसको मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, सिमिलरली 2 इंटू n लिख सकता हूँ. तो ये जितने भी 2 है वो सभी 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ कॉमन, बराबर. तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 रेस टू 3 होगा. तो ऐसे तो हमारे पास n टाइम्स 2 है ना, तो हमारे पास 2 रेस टू कितना मिलेगा, कोई कह सकता है 2 रेस टू n होगा, और ब्रैकेट में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू डॉट 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 n मिलेगा. x रेस टू n तो है ही, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. ओके समझ में आ गया. तो आपको ये पता चल गया है किसका आंसर है. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n वो हमारे पास n फैक्टोरियल का आंसर है. 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू डॉट 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 2n माइनस 1 तो हमारे पास आंसर है ही. तो इसका आंसर n फैक्टोरियल है, 2 रेज टू n एंड x रेज टू n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. एक n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही ये कैंसिल होगा तो हमने जो फाइंड आउट करना था ओके उसका आंसर हमें मिल जाएगा. tn प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू n x रेज टू n एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. हेंस दी प्रूफ. जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया. आई थिंक समझ में आ गया होगा. ओके सो ये हमारा था लास्ट सम. ओके इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया.
सो ये एक बार फिर से सॉल्यूशन आप शांति से देख लो। यहाँ तो आपको पता चल ही गया होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 वाला, बराबर ना। ओके, एनी कोई डाउट्स है इस प्रूफ में? नहीं ना। तो ये तो आपको पता है टू टाइम्स टू रेस टू, मतलब जो टू हमारे बाहर निकलेंगे वो n टाइम्स बाहर निकलेंगे, बराबर ना। सपोज यहाँ दोनों में से टू निकलेंगे, 2 रेस टू 2, यहाँ से टू निकला 2 रेस टू 3 होगा, फिर 8 में से 2 आएगा 2 रेस टू 4 होगा। सिमिलरली n में से जो 2 निकलेगा तो 2 रेस टू n होगा, बराबर ना। तो इसी तरह हमारी ये सम भी कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह हमारा आज चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम इसी के साथ कंप्लीट होता है। सो क्लैप फॉर दिस चैप्टर। ओके, आई थिंक मज़ा आ गया होगा ये चैप्टर में आपको पढ़ के। तो आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी देखेंगे स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 समझने के लिए। मैंने जो आज समझाया आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। स्टे होम, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थैंक यू।